डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, लेंस फार्मूला। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कब रियल इमेज बनाती है, कब वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक, तो अब हम सीधे लेंस फार्मूला पे जाएंगे, वो फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो लेंस फार्मूला होती क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल डिराइव दिस लेंस फॉर्मूला। Let us suppose that we have a convex lens with optical center O. Optical center O has a property that if ray of light passes through it, it will pass through it undeviated. उसमें कोई deviation नहीं आएगी. And we have a principal axis here, a line, imaginary line, which passes through optical center. Okay, now let us suppose that this is, let us say, focal length. What is focal length? Distance between optical center and focus f. ठीक है, ये आपने सारा पढ़ा है. Now let us suppose that we have an object, a linear object AB, placed normally on principal axis. A ray of light, एक लेंगे हम, एक ray of light, क्योंकि we can take infinite number of rays of light at point A. A ray of light parallel to principal axis, as you know, will always pass through incident at point D. It will pass through focus. ठीक है. Now another ray of light taken from same point A passes through optical center. It मैंने आपसे कहा it will pass through undeviated, and these two rays will meet at this point. Okay, and form the image at top, and other rays will also meet accordingly along this line. ठीक है, so what we will get? We will get an inverted image at this point. It will be A dash B dash. Now convex lens forms a real image when the object is brought from infinity up to focus. ठीक, so this is a case of case when image formed by convex lens is real. ठीक, if it were virtual image, then what will happen? अगर ऐसे convex lens है, अब virtual image कब बनाती है? जब object focus, ठीक है, when object lies between focus and optical center. ठीक है, तो इतना ही है. ठीक, let us take this is object AB, ray of light parallel to principal axis will have to pass incident at point A. Point D will pass through focus. ठीक है, another ray of light which will pass through focus will go like this. They will diverge. They will diverge like this. They will not meet on this side. So if we produce this backwards, an erect image which is enlarged, okay, A dash B dash will be formed on the same side of a lens. So this is a case of real image, and this is case of virtual image. Now convex lenses are also called these convex lenses, double convex lenses, are also called as convergent lenses. ठीक है, एक और लेंस होती है डबल, वो थिन होती है एट मिडल एंड थिक एट साइड्स. ये होती है थिक एट साइड्स एंड थिन एट एजेस. ओके,
तो ये कॉनकेव लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है, डबल कॉनकेव, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर O, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ लेट अस सपोज, अच्छा इस केस में क्या होता है, जो कॉनकेव लेंस है, डबल कॉनकेव लेंस, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो उसका ये वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, while as real images where the rays actually meet are always inverted, ये याद रखो। सो लेट अस सपोज ये इसका फोकस है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, a ray of light parallel to principal axis. Since this is divergent lens, it will not diverge it like this, ये इसको diverge ऐसे करेगा ray of light when it, let us suppose this is focus, okay, जब हम इसको backward produce करते हैं, it appears to diverge from focus, यानी diverge focus से हो रहे appears, so ये virtual image बनाएगी। एक और जो ray of light है वो ऐसे चली जाएगी, so an image is formed erect but diminished in size, छोटा हो गया है a dash b dash on the same side. So this is case of virtual image, this is also case of virtual image. अब मैं यहां से सारी कैलकुलेशंस करूंगा, जो भी, चूंकि मैंने सारे पॉइंट्स ए डैश बी डैश यहाँ लिखा, यहाँ पर भी रियल के लिए ए बी लिखा, ए बी, वर्चुअल के लिए ए डैश बी डैश, तो सारे पॉइंट्स हमारे सेम हैं। तो जो इसके लिए एप्लीकेबल होगी कैलकुलेशंस, वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, बट विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड इन द all distance are measured from optical center. Distance measured in the direction of incident light are taken as positive, and distance measured in the direction opposed to the incident light are taken negative. And the focal length of convex lens is taken positive and concave is taken as negative. Okay, ये आपको ये इसमें convections लगानी है, वो you are also familiar with this now. Now to derive this equation, I will wrap this now here. देखिए, here in this figure, triangles A dash, B dash, O is similar to triangle A B O. क्यों? देखिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक, तो दो एंगल बराबर हो गए, ऑटोमेटिकली भी तीसरा भी बराबर हो गया, तो तीनों एंगल इसके बराबर है इस ट्राइंगल के O A dash B और A B O, ये बराबर है, सो दे आर इक्विएंगुलर एंड हेंस सिमिलर. सो वी कैन राइट ट्राइंगल A dash B dash O is similar to triangle A B O dash O A B O. तो ये यहां पर भी वही है, देखिए यहां पर A B O, ये है A dash O B dash, ये भी सिमिलर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक, ये 90 है तो ये एंगल बराबर हो गया, सो इट विल बी, ठीक है, तो ये सिमिलर, यहां पर भी यही सिमिलर होंगे, ठीक है। सो अब मैं सिर्फ इसमें बात करूंगा, बाकी ऑटोमेटिकली सारे केसेस इसी में से फॉलो होंगे विद प्रॉपर साइन, अप्लाइंग प्रॉपर साइन। सो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ देयर परपेंडिकुलर साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहां मैं इसका परपेंडिकुलर लूंगा A dash B dash डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर, दैट इज AB। चूंकि हमने इस ट्राइंगल से स्टार्ट किया, अब इसी ट्राइंगल की बेस लेंगे, इसकी बेस क्या है? OB डैश, अब इसकी बेस आएगी OB, ठीक है। नाउ दिस इज लेट अस से इक्वेशन 1। नाउ ट्राइंगल ODF, दिस ODF, ये ट्राइंगल पहले मैं लिखूंगा ये वाला ट्राइंगल A dash B dash F, ट्राइंगल A dash B dash F is similar to triangle ODF। देखिए इस सिमिलर टू ट्राइंगल ODF कैसे? देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये सिमिलर हो गए, ठीक। तो अब इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस। सो
what we'll get a dash b dash by OD is equal to इसकी बेस क्या है एफ बी डैश डिवाइडेड बाय दिस ओ एफ. ठीक है. नाउ अब देखिए ओ डी ये जो यहां पर है ये अपोजिट है ए डी ओ बी. इसका मतलब ये साइड इसके साइड के बराबर, तो इसके बदले में हम ओ डी के बदले में ए बी भी लिख सकते हैं because these are opposite sides of rectangle. So OD is equal to AB, opposite sides of rectangle. So A dash B dash इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे A dash B dash डिवाइड बाय OD के बदले में AB. यहाँ क्या बचेगा F B dash OF. ठीक, let us say this is equation number 2. Now इस इक्वेशन को देखिए ये ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी है, यहाँ पर ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो ये दोनों इक्वल होंगे. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल गेट, वी विल गेट ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ. ठीक है. अब एफ बी डैश ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस एफ बी डैश ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है. एज पर साइन कन्वेंशन वी हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. सो एफ बी डैश कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ एफ. अब तो सारी डिस्टेंसेस इसमें से आए ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस विल बी इक्वल टू एफ बी डैश किसके बराबर होगा, वो होगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ. ठीक है. ओ यहां तो ऑप्टिकल सेंटर से ये ओ एफ. नाउ ओ बी डैश अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस. ओ बी डैश, नाउ व्हाट इज ओ बी डैश, ओ बी डैश दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. सो यहां से यहां तक ये वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज. क्योंकि लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में इसको मेजर करें, सो इट विल बी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव. नाउ ओ बी OB डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, हम इस डायरेक्शन में माप रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर. सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट इट विल बी नेगेटिव. सो माइनस यू. नाउ OF, व्हाट इज OF, OF इज द फोकल लेंथ. लाइट इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में माप रहे हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव. सो OF विल बी F द फोकल लेंथ. ठीक. अब हम इस इक्वेशन 3 में यहाँ पर सबस्टिट्यूट कर लेंगे. ठीक है. तो सबस्टिट्यूटिंग, तो यहाँ देंगे हम अपने वैल्यूज. तो ये क्या आएगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ओ बी डैश दैट इज वी, ओ बी दैट इज माइनस यू. फिर यहाँ पर ये तो छोड़ देंगे क्योंकि ये इसके बराबर है. ओ बी डैश दैट इज वी माइनस ओ एफ दैट इज एफ डिवाइडेड बाई एफ. ठीक. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू वी यू एफ इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वी माइनस इंटू माइनस प्लस यू एफ. ठीक है. अब यू एफ को इस साइड में ले जाओ और इसको वी एफ को इस साइड में और यू एफ को इस साइड में ले जाओ. सो ये लेंगे इस साइड में और इसको लेंगे इस साइड में. सो यू वी ये पॉजिटिव बनेगा माइनस इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ. ठीक. नाउ वी डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय यू वी एफ. तो यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ. ठीक. तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यू वी कट हो जाएगा. जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 बाई एफ. सो इट विल बी 1 बाई एफ इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. ओके. ये सारे केसेस के लिए ऐसे ही अप्लाई करना. सिर्फ यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि ये साइन कन्वेंशन का. बाकी तीनों केस के लिए चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो. ओके.
आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ मैंने जो पहली इक्वेशन है वो लिख के रखी क्योंकि ये हमें ज़रूरत लगेगी यहाँ पर। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है इस साइड में आ गया, ये इसकी ये जो लीनियरली इसका साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक, या इरेक्ट इमेज होगा या इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। तो उसे हमें मैग्निफिकेशन पता नहीं कितना साइज़ हमें इमेज का, चाहे छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। लीनियर मैग्निफिकेशन, इससे पहले लेक्चर में मिरर्स के भी बताया मैंने। लीनियर मैग्निफिकेशन m is defined as ratio of size of image hi divided by size of object, ठीक है, height of image to the height of object, ठीक है। तो अब दैट इज साइज ऑफ इमेज। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज क्या है, यहाँ पर चाहे ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, यहाँ पर क्या है a डैश b डैश, ठीक है, वो हमने लिख के रखा a डैश b डैश, ये हो गया साइज ऑफ इमेज, यानी दिस इज hi, ठीक है। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी, ये हो गया आपका HO। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव है, क्यों, और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव और अपवर्ड में पॉजिटिव, ठीक। तो ये यहां पर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारी डिफिनेशन, पॉजिटिव hi/HO। अब देखो नाउ a डैश b डैश, तो यहां पर इस फिगर पे अगर जाएंगे तो मैग्निफिकेशन क्या है, m किसके बराबर है यहाँ पर, a डैश b डैश, यानी a डैश b डैश बाई ए बी, वो किसके बराबर है, ओ बी डैश बाई ओ बी, ठीक है। नाउ m यहां पर क्या है, a डैश b डैश, व्हाट इज a डैश b डैश, दैट इज hi। व्हाट इज ए बी, ए बी है HI माइनस, ठीक है ना, क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए बी किसके बराबर है, पॉजिटिव, दैट इज HO। ओ बी क्या है, ओ बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मगर नेगेटिव है, अरे ओ बी है इमेज डिस्टेंस, सॉरी, ओ बी है इमेज डिस्टेंस, दैट इज V पॉजिटिव, और ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -U। अब ये माइनस देखिए, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ माइनस काटेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से हमें m असल में ये पॉजिटिव दोनों होने चाहिए, तो हमने लिखा hi/HO, तो ये माइनस काट हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, V/U, ठीक है। चाहे इस केस में हो, इस केस में हो, इस केस में हो, V/U होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं। When the image formed by convex lens is real, then m is negative। जब आप साइन कन्वेंशन दोगे, ये अब फाइनली जो टर्म की वैल्यू देके ये नेगेटिव होगी, कब, रियल इमेज। When the image formed by the convex lens is virtual, then m is negative, but greater than 0, greater than 1, क्योंकि ये मैग्नीफाई होती है, इससे बहुत बड़ा साइज होता है। इसमें क्या हो सकता है, यहां पर, यहां अगर इमेज होगा, देखिए यहां अगर 2f है डिस्टेंस, अगर बियॉन्ड 2f होगा, इमेज विल बी फॉरवर्ड बिटवीन f एंड 2f, जो छोटा होगा। अगर बिटवीन f एंड 2f इमेज होगा, बियॉन्ड 2f मैग्नीफाइड होगा, तो इसमें यहां पर नेगेटिव होगा, और समटाइम्स इट विल बी ग्रेटर देन 1, sometimes it will be less than 1, but negative, ठीक है ना। नेगेटिव होगा ग्रेटर देन 1 जब ये मैग्नीफाइड बनाएगा, और जब ये छोटा बनाएगा तब लेस देन 1, तो ये हो गया। अब कॉनकेव लेंस के, इस कॉनकेव लेंस के लिए क्या, देखिए हमेशा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, क्यों, ये भी इरेक्ट पॉजिटिव, ये भी इरेक्ट पॉजिटिव, सो कॉनकेव के लिए m क्या होगा, पॉजिटिव। बट चूंकि इमेज ये हमेशा छोटा बनाएगा, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा बनाएगा, सो इट विल बी, साइज इसका होगा m होगा पॉजिटिव बट लेस देन 1, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन, अभी हमने देखा था m v एंड f एंड m u एंड f, उनके दरमियान हम रिलेशन लेंगे। देखिए अभी हमने रिलेशन निकाली लेंस के लिए,
1/u माइनस 1/e। मिरर के लिए है 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, ये ख्याल रखना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाई v। सो v/v, v/u, v/f। ठीक है, तो ये 1 होगा। सो दिस भी 1 माइनस v/u, v/f। मगर हमें पता है v/u होता है मैग्नीफाइंग पावर m। ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस m v/f। ठीक है, और m को इस साइड में ले लो, इसको इस साइड में ले लो, तो हमें होगा m विल बी इक्वल टू 1 माइनस v/f, और m विल बी इक्वल टू it will be f minus v/u. So this is the relation between by f। ठीक है, this is the relation between f, v and m। अगर हमें u नहीं दिया होगा तो मैग्नीफाइंग f और v से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय u ऑन अभी क्या किया हमने v से, अब u से इसी इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट वुड बी u by v माइनस u by u इज इक्वल टू u by f। v by v, सॉरी u by v, तो यहाँ क्या होगा 1। सो इट विल बी, देखिए u by v हमें क्या बराबर होता है, v by u होता है हमारा m। यहाँ पर क्या है u by v, तो वो क्या होगा 1 by m। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 by m माइनस, ये तो 1 होगा u by f। इसको इस साइड में ले जाओ, इसको ऐसे रखो m u by f प्लस 1। ठीक है, तो इसको एलसीएम निकालो, वो क्या होगा 1 by m विल बी इक्वल टू u प्लस f डिवाइड बाई f। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो ये बनेगा m इज इक्वल टू f बाई u प्लस f। तो ये रिलेशन क्या है, जब हमें f और u दिया होगा m निकाल सकते हैं। ठीक है ना, या अगर m और u दिया है f निकाल सकते हैं, कोई दो दिए होंगे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? डेफिनेशन, द पावर p, ठीक है, ऑफ अ लेंस इज डिस्क्राइब्ड, लेंस कोई भी हो, चाहे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लेंस हो, कनकेव या कॉन्वेक्स, described as tangent of the angle by which it converges or diverges the beam of light falling at unit distance। इसको नोट करके रखो, यूनिट डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो यहां मैंने कैलकुलेशन मैं अभी दिखाऊंगा यहां पर। लेट अस सपोज दैट दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, लेट अस सपोज दैट रे ऑफ लाइट फॉल्स इट at a point D। Now what will happen, since it is parallel to the principal axis, let us suppose its focus यहाँ पर है, so it will pass through the converge and pass through the focus। Now if this convex lens were not there, then light would have traveled in straight line in this direction। But due to the presence of convex lens, this light has been deviated, ठीक, by an angle delta। ठीक, let us suppose this OD, ये हमारा h है, कितना हाइट h है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, OD h के बराबर है। ठीक है, now this line is parallel to this, so this will be also delta, alternate angles। now from this यहाँ पर फिगर पर जाएंगे, tan delta will be equal to perpendicular, that is OD, यहाँ पर पॉइंट D है ये। ठीक, OD divided by base OF। ठीक, OD, what is OD? OD is H। what is OF? OF is F। now as per definition, लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें h क्या करना है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो हमने h को 1 कर दिया। सो tan डेल्टा इज 1 by f। नाउ इफ दिस डेल्टा इज स्मॉल, वी कैन रिप्लेस फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, वी कैन रिप्लेस tan we can replace tan delta
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा। सो इसके बारे में लिखे tan डेल्टा में डेल्टा इट इज 1/f। सो 1/f ही होता है पावर p। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। सो अभी हमने देखा पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दस पावर इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। तो हमें इसको किसमें फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करना है, ठीक। तो आगे मैं बताऊँ सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे। नाउ सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड डायोप्टर। स्मॉल डी से लिखना, सिंबल लिखोगे तो कैपिटल डी से, डायोप्टर डी। तो अगर हम लिखेंगे एफ को एक्सप्रेस करेंगे मीटर में, एफ इन मीटर, सो पावर विल बी 1/मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स। ओके, पावर इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। जो लेंस सिस्टम कन्वर्ज लाइट को करेगा उसको हम पॉजिटिव पावर कहते हैं, इसका पावर पॉजिटिव है, ठीक, प्लस। एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस, जो लेंस सिस्टम लाइट को डाइवर्ज करेगा उसके लिए पावर क्या होता है, नेगेटिव। यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस का ये जो पावर है पॉजिटिव है और डबल कॉन्केव लेंस का नेगेटिव पावर है, ठीक। दस इसका ओवरऑल जो है जिस्ट, दस पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कितनी कन्वर्जेंस पैदा करेगा या डाइवर्जेंस, विच अ लेंस इंट्रोड्यूसेस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी कितनी कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा लाइट जो लेंस पे फॉल कर रही है। ऑब्वियसली जब अगर छोटी फोकल लेंथ होगी, ठीक, तो पावर ज्यादा होगा, यानी ज्यादा कन्वर्ज करेगा। मिसाल के तौर पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये लाइट आ रही है, इसने यहां तक यहां पर इसको कन्वर्ज कर दिया, ठीक। अगर एक और लेंस लाएंगे हम, इसने यहां पर कन्वर्ज किया, तो इसकी फोकल लेंथ इतनी है, लेट अस से एफ, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है एफ डैश, तो एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, तो इसका पावर कम होगा, डाउन एज कंपेयर टू दिस, इसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। सो मोर द कन्वर्ज, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना पावर ज्यादा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और करेंगे। नाउ आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब ऑप्टिशियन पे इसके पास जाते हैं हम, तो वो अगर करेक्टिव लेंस यानी कौन सी लेंस उसको लगानी है, उसमें वो लिखता है प्लस। मिसाल के तौर पर उसने लिखा 2.5D, यानी पावर उसका है 2.5D। तो पहले हमें पता चलता है प्लस से ये कौन सी होगी, कॉन्वेक्स लेंस, उसका पावर 2.5D, तो उसकी व्हाट विल बी, इट इज फोकल लेंथ। तो वो ऐसे निकालेंगे हम, क्योंकि रिलेशन में पता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये चूंकि डायोप्टर है, इट मींस इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस मीटर्स। ओके, तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, पावर कितना है उसका, प्लस 2.5, ठीक है, 1/f। सो f विल बी इक्वल टू 1/2.5। चूंकि जनरली जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो अब हम इसको फिर जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। तो याद रखो, अगर हमें एक्सप्रेस सेंटीमीटर में करना है तो हमें लिखना होता है P 100/f, अगर f हो इन सेंटीमीटर्स, f इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने किया, तो f विल बी इक्वल टू, यहां पर देखिए 10 to 1000 2000 divided by 25, so 5 4s are, so it will be 40 सेंटीमीटर की हमने यहाँ f लिखा, so f is equal to 40 सेंटीमीटर। सो अगर ऑप्टिशियन ने लिखा प्लस 2.5D, उसका मतलब है जो वो लेंस बनाएगा वो 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो इससे हमें पता चल गया लेंस क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ऑप्टिशियन ने लिखा किसी को -4 डायोप्टर, 4.0 डायोप्टर, तो यहां से हमें पता चलता है लेंस क्या है, कॉनकेव डाइवर्जेंट लेंस, उसका ये कितना है, पावर 4, ठीक है। तो अगर हम यहां पर करेंगे, देखिए तो पावर कितना है, -4 इज इक्वल टू 1/f, 100 में, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 100/f, तो हमारा जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ठीक। तो f विल बी इक्वल टू -100 divided by 4, so it will be 25,
ठीक है। सो एफ विल बी -25 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव लेंस बनानी है जिसकी फोकल लेंथ -25। ओके, थैंक यू।